Discord. So are you guys ready for the session? थोड़ा सा cheer हो जाए. I know सब अपने अपने घर पे बैठे हैं, पर थोड़ा सा बोल सकते हैं. I guess अभी किसी को बात नहीं करनी है. So as we all know, हम लोग यहाँ पे क्यों gather हुए हैं? To know more about Google Summer of Code, and let's have a say from our speaker, Kunal Kushwaha, that he has cracked his Google Summer of Code in first year. So are you guys ready to learn from him and you make your own way to GSOC 25? I would like to give the mic to the speaker. Am I audible, guys? Okay. So, hey everyone, I'm Karan Palan. I'll start sharing my screen for the session. So, is my screen visible to everyone? Okay. All right. So, thank you for the Cybox community for inviting me here. So this session is basically on GSOC, Google Summer of Code. So these are my socials and the blog, which I wrote about how to get into GSOC. So this is going to be the overview of the session. Um, First, I'll tell you about me and my experiences and how I got into GSOC. Next will be about what is open source and the basic terminologies. Then what is GSOC, the what, why, and how. Then how are we gonna find the organizations or companies, how to contribute, how to write the proposal, some ad hoc things, and followed by your questions. So in my journey started in 2023 when my JEN boards did not go that well. I got around 70%, 70 percentile in both. So there was a lot of uncertainty with my career. And then I like explored different business models, different career options, and I found out text to be the best one. Then I brute forced tech YouTube. I watched almost every channel. So I found out Kunal Kushwaha. So Kunal Kushwaha is this guy. If you know about him, so he cracked Google Summer of Code in his first year as well, and then he worked a remote job in Civo. So he had also a similar background that I had, like not so good marks in boards and like in a tier 2 or tier 3 college. So then I felt relatable. I got hope, and I started coding around August 2023. I did two courses, which was one was on web development, other was on Python. Both were by Dr. Angela Yu on Udemy, and I denoted 2 hours a day each to them. Then I did Hacktoberfest in October. Participated in two hackathons, did not get any results. Completed 40% of the Python course and completed the complete web development course. Um, then I explored ML for Microsoft Imagine Cup, and I also learned Electron.js. If you know, that's a framework for developing desktop applications. Then I started Harkirat's cohort, if you might know, in December. Then I did 3 to 4 small in-code documentations changes for GSOC in Sugar Labs. Then I won my first hackathon in LNM IIT. I attended meetings in Sugar Labs, got in touch with the mentors, got more small PR, 4 more small PRs merged, and I qualified Imagine Cup to round 3. Then I learned the Ethereum stack. I was curious about it, how blockchain works. So Ethereum stack is basically Solidity, Hard Hack, Truffle, and all those things. Then I got my second hackathon win. It was in IIT Delhi. Third hackathon win was IEEE MUJ's Gen AI hackathon. I had completed cohort 10 weeks about then. So in 10 weeks, I knew MERN stack. I had built a few full stack applications, and I had experience of all those hackathons and a few open source contributions. And then I got selected in Google Summer of Code in Sugar Labs. Then in around summer vacations, I did my GSOC project. Cohort completed around 18 weeks, and I also won my fourth hackathon. Then I learned paid ads, did a bunch of intraday and swing trading, focused more on my health and like gym, and like then I started to recover my academics. I got it to 7 CGPA again, and then basically I got an offer. It was a freelance consultant offer from a blockchain company. It is a stealth, so I cannot say the company's name, but the work I'm doing revolves around making Telegram applications and building websites for their smart contracts. Then I got my fifth hackathon win, which was GDSE MUJ.
Then this is my journey till now. I attended another hackathon, contributed to another open source projects this year for GSOC and other stuff. What I'm doing and what I plan to do is I plan to become a complete engineer to have idea of all the fields. So I'm gonna focus on core subjects, build a lot more solid projects, and like I'm gonna launch a product that I have an idea for and market it. I'm gonna do more open source, get ownership of the code bases that I contributed to, and I'm gonna contribute to Chromium because that is something I'm curious about. So everybody has a different path. Create your own and set your own timelines. I have seen a lot of my friends and a lot of juniors in my college. They tell me that what did you do? I'm gonna do the same. That will not work out for you. You will have to find out your own path. So is it I'm audible, right? Till now? Okay. So what is open source? So open source refers to the software projects. Okay. Where code is publicly available. That means like you can view, use and modify the code. If you modify the code and the maintainers or the code owners like your code, they will select you or like they will merge your pull request. So these are some popular open source projects like VLC Media Player, Visual Studio Code and Chromium. You might have heard of these projects. We use it day to day. And this is a video that you can refer for Google Summer of Code. I mean, sorry, for open source. This is by Free Code Camp. Moving on. Okay. So, addressing the elephant in the room, Google Summer of Code, GSOC. So, GSOC is an initiative by Google to increase engagement in open source software. So, how it works is organizations apply with project ideas, students apply with their proposals. There is a mentorship and a coding period. There is a midterm and a final evaluation. So, I've linked this video. Oh, I don't know what's this. Um, I'll just reload this slide. Hmm. Okay. Okay, so back where I left. So organizations apply with their project ideas. Student apply with their proposals. There is a mentorship and coding period. There is a midterm and a final evaluation. So this is just a brief idea. I'll take you through every step in detail. So this is a blueprint for GSOC. So this is a replicable process that I'm showing you here. So you need to be decent in one tech stack of your choice, and then you need to find projects to contribute to, right? So these are interlinked as I've drawn arrows here. So I'll show you how. So there is this website named as gsocorganizations.dev, which I use for shortlisting organizations. So I'll tell you a story. There is this friend I have. He's in second year as well. So most probably he'll get in this year into GSOC. So he asked me around August that I want to contribute to GSOC. So what tech stack do I learn? So I was like, okay, you must first try to understand what type of development do you want to do. So he started with web development. And in web also there are different stacks. You have the Mern stack, you have Django in the back end, you have Spring Boot, you have ASP.NET, a lot of stuff, right? So let's say I go in the categories of end user applications. End user applications are basically basic websites that people use. So these are the end user applications we have, right? And let's say I need JavaScript to be an option. So you need to decide your tech stack based on the organizations. So let's say we start with Opia. Um, it shows you the chart. Okay, these many projects came last year. Okay, 18 was the highest. 20, in last year, 8 projects came. Number of projects means number of people selected. So now you can see the tech stack here. Okay, Angular JS, TypeScript, etc. Now we move on to different organization, and let's say we choose Zulip. So Zulip is a very famous organization. It is a chat app if someone knows about it. So let's say it uses Django, JavaScript, React Native, Electron. Okay, there are projects about JavaScript and TypeScript and backend endpoints. So now, as you can see on the projects,
there are two languages being used here. One is JavaScript, the other is Python. The frameworks are React, and the other framework is Django. So now what you have to do is you have to go into every organization and check out its every project so that you will get a brief idea that what kind of technology is being used in these open source projects. Let's say you are a Android developer and you develop stuff in Kotlin. Let's say you are like a multi-platform mobile developer and you use React Native, or let's say you use Flutter to develop your applications. So now you need to find out organizations that use that, and then you need to study the tech stack, if that makes sense. So this is how you are gonna do it. So you need to first of all find projects to contribute, then be good at a tech stack, or you can learn a tech stack. Like I learned Merge Stack right on the go, and then I started to find organizations. So it works both ways. Both are interlinked. You also need to familiarize yourself with Git and GitHub, and Hacktoberfest can be a great start point. So the folks who don't know what Git and GitHub is, I recommend you watch a tutorial. There are a lot on YouTube. You basically need to know what is commit, what is pull request, how to fork the repository, and everything else is like a basic stuff, if that makes sense. Then we come on to the point that how do we select organizations, right? So I've linked the website that I showed you here, and there is this video which I've also linked here. So I'll share the PPT after the session. You can have a look at all the videos. They are very informative. I mean, these are the videos I used whilst my preparation. So I'll show you how to select the organization. So let's say I have searched like let's continue with the stuff I've done till now. Let's say I know the MERN stack. So I've chosen end user application. I've chosen JavaScript. Now I'll check and see what are the organizations coming. So let's see Aussie first. Okay. High number of projects. 18 folks were selected last year. So if you contribute here, there are high chances that you might get selected as well because the organization is selecting 18 people. So let's see the projects. Resonate version 2 proposal, improving the current user flow. Okay. So now we will click on more details. More details will open the official Google Summer of Code archive page. Now we see the technologies first. Node.js, Flutter, LiveKit, AppWrite. So now you think, okay, am I familiar with any of these technologies? You need to really think about it. Okay. And so this is the thing, right? The organization you choose must be active. See, like for example, Aussie is active, right? It has came every year since 2017. It has came almost every year, and the projects people getting selected are also high. The lowest it went was 6 projects. 6 is the highest for many organizations. So it selects a lot of people, and the projects coming here are also very easy. So we are having a look. Okay, so I don't know Flutter, so I'll not move ahead with this project. So basically, you have to check every project. Improving Agora blockchain DApp, improving user experience, security, and functionality. Okay. It uses PostgreSQL. Okay, I'm aware of that. TypeScript. Okay. I'm okay with Next.js. I know Solidity nicely, and I'm not aware of what cron job is. So now what you have to do is you have to click here and view the code. So what this view code is, this is a final report of the person who completed GSOC last year. So we'll wait for it to open. Mm, all right. So now we have the final report. Okay, so he's showing his LinkedIn project. And there we go. There we have the project GitHub repository. Then we will try to understand what the project is. We will read the abstract. Okay, these are the technologies. Okay, I'm aware of all these. The things you are not aware of, it is fine. You will learn on the go. You need to be aware of at least the 30% of the tech stack so that you find it easy to contribute. He has linked the GitHub repository here. This is the GitHub repository that he contributed to during his GSOC period. Okay, this is a blockchain-based community funding platform. This was his GSOC project. And for anyone who's been into blockchain, you can clearly build anything like it. So, okay. So now you have to try and understand the project that was done last year. This process is time consuming, and this is the only process where you will feel like you are not moving forward, but you have to do it because project selection is one of the most important part of GSOC.
No matter how good of a tech person you are, no matter how good you are at contributing, if you choose the wrong project, it's almost done for you. So, okay, this is how to run the project locally. Okay, so this kind of makes sense. Now you see, look at the project. Okay, okay. So this project looks like some project I made in a hackathon, but a more refined version of that. So I'm very comfortable with it. So I can contribute to it easily. So this is a project I'll keep in my shortlisting list. I'll also show you my list for this year. If I can find it. Okay, we'll wait for it to open. So like this is how I shortlisted one project, right? We'll try other also. Okay, enhancing the UI UX of the Resonate application. We'll click on more details. Flutter, Figma. I'm not aware of Flutter, but like if someone is, you see how easy projects these are. Like you just have to redesign the whole application. Like it is not very complex work if you are good at what you do. Then you have PictoPy. Okay, this is something related to Python. I know Python. JavaScript. Okay, React, SQLite, Electron. Okay, I can do it. Desktop application for an image gallery with machine learning models powering its functionality. Okay, kinda makes sense. There will be a desktop application. There will be a machine learning something running in the background. We will try to view the code. Okay, this is his report. These are his rated PR. So now you have to check out his PR. What checking out the PR will do is it will show you what the repository is. So let this open. Okay, okay. So the electron based now this section is very important right here. I did not include this in my PPT as I wanted it to be a little ad hoc. So potential development of an electron based front end. So this has not been done in the GSOC period yet. So what you have to do is you have to try and find half projects like the projects which are half finished because every project like GSOC is a 3 month internship. If the project is like very big like my project was, it may or may not be completed in the 3 months. So it will be most probably handed over to the next year's GSOC mentee. So okay. So now if anyone's watching and if anyone is comfortable with Python and JavaScript, this is a project for you. Potential development of an electron based front end. So Electron is nothing but a wrapper. So, okay, add backend starter code. This is his PR. Now try to understand it. So now he is starting the backend. The backend is in Python. Okay. Now try to understand this code. Do you understand it? Are you even a little bit aware of it? Okay. YOLO. So do you know what YOLO is? What it is used for? Are you aware of some machine learning algorithms? Or do you think that you will be able to learn this? If yes, then you are good to go. So now what you have to do is then you have to go to the organization. Then you have to obviously like the basic stuff. You have to fork it, clone it, and then you get on to the issues. We'll check out this issue. Redundant data storage due to multiple databases. Okay, okay. So if you understand the issue, you can solve it. And before solving an issue, obviously, you must have a look at the. Okay, so this is a fairly new code base. There also it has 60 stars. Okay, damn. Okay, so there are usually contributing guidelines of organizations. We'll get onto that later. So yeah, this is how you can make a list. So this is the list for my GSOC or my other open source contributions this year, and these are the organizations that I'm currently contributing to. So and these are the other issues that I've linked. So you have to create a list like this. Harkirat also created a Google Doc. If you might have seen his video. So yeah, so I have basically shortlisted all the projects. See, this is the repository. This is the issue. So yeah, so you have to shortlist organizations based on this way. I'll share this documentation also if required afterwards. So let's try and find some other organization. Um, let's go on to Opia and let's also go on to Zulik. Now, mind me, these are the organizations that have come from around 2016 or 2017. So there will be a lot of competition in them. But I'm just showing you the projects. Make CI and pre-push hooks more efficient. So just try to understand if you are aware of CI, what CI is, this project might be related something to unit test and Husky or something, I guess. Let's have a look. Python, GitHub, TypeScript, and testing.
Okay, makes sense. So what this project does is, when you commit something, it checks it. So we'll try to understand the code. We'll also check the project for Zulip. Migrating Zulip's JavaScript code base to TypeScript. Now this right here is a very easy project. Anyone who knows JavaScript and TypeScript just knows how easy it is to migrate. Yeah, you might have to rewrite some components because of the way those are written in JavaScript. But like almost any LLM is capable of doing this, right? But since this project has come into Zulip, you need to be a contributor for about at least 2 to 3 months, I would say, to have a shot at this project. Okay, Zulip also takes in around 18 people, 17 people. So this is his final report. Now try to understand it. This is very time consuming process. You will have to go through each and every project of each and every organization, and then you will basically shortlist. So okay, so if you understand it, so you can try and contribute to this project. And so basically, I hope shortlisting organizations is clear. And basically, what you have to do is these are the 3 points. The organization must be active. So active is like, if you folks know about FOSS Asia, I'll show you. FOSS Asia GitHub, or let's say C2SI, C2SI GitHub. So these are a few organizations. So like C2SI. C2SI में last year there is a project that came. Where are you? When is the last commit? 10 months ago. Yes, they have applied for GSOC. This organization might come into GSOC this year. But the last commit is 10 months ago. So you don't have any chance of contributing here. See, we'll check on the issues. This was open last week. Incorrect contributor pagination on initial load. Okay, this is an issue that this guy has identified. And he is asking for assignment, but nobody in the repo is active. He did his GSOC, so the maintainers are not active. And these are the organizations where you will not get the feel of open source. Because, see, one of the organizations that I'm contributing to right now does it very perfectly. It's named as Meshery. I'll show you their code base. The last commit was 11 hours ago. Yeah. So this, so the Lee is the mentor. So he is opening issues. I have opened my issue, and basically they are very responsive. See, this is a issue opened. A pull request has been linked to it. So these are the kind of organizations where you want to contribute, where you have the complete feel of open source, where you have the feel of the community stuff, and so yeah, do not contribute to organizations like these where it is very inactive and stuff. So all right, getting back to the presentation, the organization must be active. Make sure that it is active year long and not during just the GSOC period. The biggest reason I'm saying this is because you will not be able to contribute. You will not be able to show what you have to offer to the organization. And the past record, obviously, you need to do this basically. कि at least organization 2 साल तो आई हो 24-23 and yeah, हटा दे. So now we have all the organizations that are using JavaScript, are simple websites, and came in 2023 and 24. Okay, these are the organizations. Now you shortlist from them. पहले इनमें से करो. If you don't find any organizations, any projects, फिर दूसरे पे जाओ. So this is how you have to shortlist. It is a very time consuming process. You will have to give around 3-4 घंटे हर रोज for the next week to at least find the project of your liking and setting it up. It also depends on your experience, but you must be interested to contributing. This is the optional thing, but like एक बार सोच के देखो. I'm contributing to Chromium and I'm contributing to Meshery. I'm not contributing to these projects um, of thinking of an outcome. मुझे Chromium में contribute करना है because it is a tough code base. 150 gigabytes का code base है Chromium का. पूरा C++ में लिखा है. Some part is in TypeScript. तो मेरा learning होगा वहाँ पे. इसलिए मैं जा रहा हूँ. Meshery में the community is very active and they have also an internship program. तो they are very helpful. तो मेरा learning होगा यहाँ पे. So I'm very interested. GSOC should be your second motive. But I kind of understand. थोड़ा बहुत desperation होता है कि हाँ यार फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लग जाए या GSOC हो जाए या कोई भी ईयर में. But usually you should be interested in contributing.
तो ही तुम्हारा मोटिवेशन बन पाएगा. द प्रोजेक्ट मैचेस ग्रेटर देन 30% ऑफ योर टेक स्टैक. ऐसा डजेंट मैटर. मुझे सी प्लस प्लस बिल्कुल नहीं आती थी. आई हैव क्रिएटेड 4 पुल रिक्वेस्ट इन सी प्लस प्लस अभी अभी. सीख के यूजिंग स्टैक ओवरफ्लो यूजिंग एलएलएम्स सीख के मैंने 4 पुल रिक्वेस्ट मारी है. उसमें से एक मर्ज हो गई है, 3 पे थोड़े बहुत कमेंट्स हैं. इट विल ऑल्सो गेट मर्ज. तो डज नॉट मैटर, बट रिलेटिवली इट मेक्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग ईजियर इफ यू आर अ न्यू कॉन्ट्रीब्यूटर. अब मुझे टाइम हो गया थोड़ा, 1-2 साल हो गया मुझे करके. तो इट्स रिलेटिवली ईजी फॉर मी कि अच्छा ठीक है, यही करता होगा. तो then you have to contribute till organization announcement date. So I'll share you this GSOC timeline. Okay. So as you can see, on 27th February 18 UTC, मतलब 27th को 11:30 बजे रात को, you will get a list of accepting mentoring organizations, right? तो अब तुम्हें ये जो लिस्ट है ना, ये तुम्हें देखनी है. वो दिन तुम्हें रात को पूरा जागना है. यू हैव टू स्टे अवेक ऑल नाइट एंड लाइक ट्राई टू फाइंड आउट प्रोजेक्ट्स दैट आर फॉर योर सेल्फ. मतलब जो तुम्हारे टेक स्टैक को मैच करते हैं, जो आसान है रिलेटिवली. विल गेट ऑन टू दैट लेटर अगेन. बट तो ये टाइमलाइन के हिसाब से. तो सी, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू, जैसे देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ईयर. इफ दे गेट सिलेक्टेड, आई हैव मोर देन 5 years मर्ज. आई एम द टॉप कंट्रीब्यूटर इन दैट रिपोजिटरी. तो मेरा अच्छा खासा चांस है. मेरा जो दोस्त है, he also has around 10 PRs merged. सर्टिफिकेट का फाइनल तो अभी हो गया, अभी तो मार्च Um, एंड में. there is some background disturbance. अभी तो वैसे ही है. कंटिन्यू कर लो क्या, या कोई कुछ बोल रहा है? कंटिन्यू कर लो. ओके ओके. तो बेसिकली इफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हो जाती है, तो और तुम्हारे 5 पीआर मर्ज हैं, तो 5 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा अगर पीआर ऐसे मर्ज हैं, ओके, देयर माइट बी सम इशू. जस्ट अ कंफर्मेशन, है मैं ऑडिबल? यस यस ऑडिबल. ओके ओके. यस हाँ, तो सर अगर ऑडिबल. 5, ओके थैंक यू. तो अगर 5 से ज़्यादा पीआर तुम्हारी मर्ज है ना, तो तुम्हारे अच्छे खासे चांसेस हैं. अगर ठीक ठाक अच्छी खासी पीआर मर्ज है और तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी है, तो द ऑर्गेनाइजेशन आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन नाउ, मेरे 10 पीआर एंड आई ऑल्सो क्रिएटेड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फॉर देम. तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो मेरे चांसेस अच्छे खासे हैं. सो नाउ व्हाट इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कम्स, मैं किसी और को नहीं देखूंगा. आई डबल डाउन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फोकस ऑन माई प्रपोजल में मैं आधा जीसो का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दूंगा कि मेरे चांसेस 100% हो जाए सिलेक्ट होने के. फिर इफ ऑर्ग इज सिलेक्टेड और तुम्हारे 2-3 ही पीआर मर्ज हैं, मतलब बेसिक से तुमने गुड फर्स्ट इशू सॉल्व करे हुए हैं, और तुम्हारे लग रहा है ठीक ठीक ही चांस है, ऐसा कुछ एकदम लग नहीं रहा कि हो ही जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में तो कंट्रीब्यूट करना ही है. उसमें तो बहुत मेहनत करनी है. तुम्हें और एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है. चूज अ रिलेटिवली न्यू कंपनी. रिलेटिवली न्यू कंपनी कैसे ढूंढोगे? देखो, आई शो यू. फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे जाओ, 2024 पे क्लिक करो. सिर्फ ये सिर्फ पिछली बार आई थी, ये सारी ऑर्ग. एक सेकंड, श्योर क्या? ओके, सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्लिक करना है. हाँ, सो दिस 34 ऑर्गेनाइजेशन ये पिछले बार आई थी. तो इसमें देखो कि क्या चल रहा है. अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नाइट वॉच जेएस यूज करा हुआ है मैंने. ओके, एलिमेंट एपीआई मोबाइल हेल्पर टूल, काफ़ी आसान आसान प्रोजेक्ट है. जब मैंने शॉर्टलिस्ट करा था मैंने देखा हुआ था. बट अनफॉर्चुनेटली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कमिंग दिस टाइम. मैंने इनके डिस्कॉर्ड में देख लिया, इसलिए बता रहा हूँ. तो विल ट्राई दिस ओपन हेल्थ केयर नेटवर्क, रीराइटिंग द मिडलवेयर सर्वर इन जैंगो. एनीवन जिसने बैकएंड डेवलपमेंट करी हुई है, उसे पता है कि आसान होता है. वो भाई भी इतनी मुश्किल से तो बैठ के घर ओके ओके, नो इश्यूज. हाँ, तो बेसिकली रीराइटिंग द मिडलवेयर सर्वर इन जैंगो. अब समझने की कोशिश करो क्या है. ओके, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन टाइपस्क्रिप्ट एंड रिक्वायर्स अ रीराइट इन जैंगो. ओके, तो जिसको जैंगो आती है और जिसको टाइपस्क्रिप्ट आती है, तो वो एक बार सर्वर देखेगा और उसको रीराइट कर सकता है. अभी व्यू कोड पे क्लिक करेंगे. मैं बस बता रहा हूँ कि नया ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करना है. तो ये नया ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, समझने की कोशिश करो क्या कर रहा है. ओके ठीक है.
मतलब इस बंदे ने पूरा सर्वर लिख दिया, इनका नोड जेएस या टाइपस्क्रिप्ट में सर्वर होगा, तो उसको पूरा अलग से बना दिया इसने। तो दिस इज द प्रोजेक्ट, समझने की कोशिश करो, इसमें जाओ। अब देखो, दिस इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग्स, बेसिकली मैंने इनको मेल करा हुआ था, तो मुझे इनका रिवर्ट बैक आया था। सो बेसिकली ये देखो, यहाँ पे इन लोगों ने स्लैक का कुछ डाला नहीं है, ओ एच सी नेटवर्क, कंपनी, यूट्यूब, ओके। सो दे हैव जस्ट पुट देयर मेल इन। तो उन्हें मेल करो कि हेलो, आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट यहाँ से, मुझे यही आता है, आई हैव सीन योर प्रोजेक्ट, मुझे इस बार जी सॉक करना है, एंड मेरे को बताओ कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं आई शो यू माई मेल फॉर एन एग्जाम्पल। एक सेकंड रुक जाओ, आई शो द मेल हियर। ओके, तो होपफुली माई मेल स्क्रीन इज विजिबल। तो दिस इज द मेल आई रोट, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट आई रोट अबाउट माई सेल्फ, फ्रंट एंड ऑफ योर रिपोजिटरीज, अ बिट अबाउट माई बैकग्राउंड। तो मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था, यूजुअली स्लैक होता है कम्युनिटीज़ का। तो मैं दिखाता हूँ मेरे स्लैक में क्या क्या है। ओके, दिस इज, तो ओके, तो होपफुली माई स्लैक इज विजिबल। तो अभी मैं C2SI के स्लैक में हूँ, मैं CC रिसोर्स आर्काइव के स्लैक में हूँ। सो दीज आर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, होपफुली मेरे को किसी में वो नहीं करा है टैग, हाँ नहीं करा है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे बात करना है मेंटेनेंस से। अभी जैसे जेसन स्कीमा के लिए मैंने वो बनाया था एक एक्सटेंशन, सो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सो यू नीड टू ऐड वैल्यू टू एवरी कन्वर्जेशन। मेंटर का टाइम फ्री नहीं होता, ये मुझे समझने में टाइम लगी थी, दीज आर द मिस्टेक्स आई डिड। तो बेसिकली मैंने इनसे बात करा, तो इनके साथ ये सब बातें हुई, तो प्रॉपर ऐसे फेमिलियरिटी बनती है। तुम ऐसे ही बात करोगी कि मुझे ये करना है वो करना है, कोई तुम्हें हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा हर चीज़। तो यही बात है, आई गेट ऑन टू दिस पॉइंट बाद में। सो दिस इज हाउ आई मेल्ड देम, दिस इज द रिप्लाई कि ओके दे हैव अ स्लैक। क्या स्लैक कम्युनिटी यहाँ पे लिंक्ड है कहीं पे? गवर्नमेंट ऑर्डर्स, नहीं 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 नहीं। ओके, डिप्लॉय डॉक्स AWS एज़्योर GCP, ठीक है। तो फिर अभी तुम्हें पता है स्लैक यहाँ पे नहीं है, बट अभी मैंने मेल करा तो मुझे इनका कम्युनिटी का एक्सेस मिल गया। तो नाउ आई कैन गो एंड टॉक विद द मेंटेनेंस। अब तुम्हें क्या आता है? फ्रंट एंड आता है, जाओ फ्रंट एंड पे और देखो और कंट्रीब्यूट करो। ये देखो कैर एफ करके एक है, मैंने इसमें ट्राई करा था बट लाइक बहुत कंपटीशन थी, तो मैंने इसमें फिर कंटिन्यू नहीं करा। अब आई डोंट नो व्हाट्स द स्टेट ऑफ द कंपटीशन। ओके, तो एक्टिव तो है लोग, PR मार दी एंड ओके। तो अभी समझने की कोशिश करो और तुम्हें ना आउटशाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके, तो वी हैव कवर्ड केस 1। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। कोई है जिसका ये केस है अभी यहाँ पे इस कॉल में? एनीवन जिसका अराउंड 5 ईयर्स मर्ज रहा है, जिसको ओपन सोर्स में एक्सपीरियंस हो? ओके, ऑल राइट, सो देर आर नो आंसर, सो आई एम अज्यूमिंग कोई नहीं है। कोई का ये केस है, किसी का ये केस है जिसके अराउंड 2 पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो, थोड़ा स्टेप आगे लिया हो? ओके, तो अज्यूमिंग कि यहाँ पे सारे के सारे ऐसे लाइक बिगिनर्स है ओपन सोर्स को, और उन्हें अभी जी सॉक का स्टार्ट करना है, तो उस हिसाब से मैंने एक पूरा स्लाइड बनाया था। तो ये वाला है। थर्ड केस ये है कि यार तुमने इन दोनों चीज़ें करी बट तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट ही नहीं होती है। तो तो तुम क्या करोगे? नया ऑर्गेनाइजेशन ढूंढोगे। यू विल फाइंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल बी वेरी 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 एग्रेसिव विद योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अब दिखाता हूँ, ये तुम्हारे लिए प्लान है फॉर एनीवन प्लानिंग टू क्रैक जी सॉक अभी से शुरू करके। तो तुम्हारा केस 3 जैसा है। अज्यूम करो कि तुमने अब तक कंट्रीब्यूट करा है और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को गूगल ने सिलेक्ट नहीं करा। तो नाउ यू हैव टू पिक अ रिलेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्लैश इजी प्रोजेक्ट्स। मैंने तुम्हें दोनों बता दिया है कैसे ढूंढना है, एक बार वापस ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, या सिर्फ इस पे जाओ, 2024 और 23 में जाओ, जावास्क्रिप्ट में जाओ और खाली खाली कोड बेस ढूंढो। अभी खाली खाली कोड बेस का एग्जांपल कैसे दे दूँ मैं? क्या मुझे कोई पता है? ओके,
मैं एक बार अपना लिस्ट चेक कर लेता हूँ फॉर सम एग्जांपल्स। OHC, Force Asia, Jitsi and Joplin. Okay, let's try with Force Asia. Okay, Jitsi से जाते हैं। तो अभी ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था इसका नाम है नोशन। तो जिट्सी इज ऑल्सो अ मीटिंग सॉफ्टवेयर। जिट्सी गिटहब जैसे जूम है वैसे ही जिट्सी है। देन वी हैव जॉपलिन, गिटहब। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो केम फर्स्ट ईयर, मतलब पिछली बार आई थी ये, देखो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में। फर्स्ट टाइम नहीं था क्या इनका? अच्छा, तो 2 बार आई होंगी, लेट्स चेक। ओके, जॉबलाइन 3 साल आई हुई है। सो इट केम लास्ट ईयर अगेन। इस बार आएगी या नहीं आएगी, आई हैव नो आइडिया। तो लेट्स ट्राई टू सी इनका कोड बेस एंड इनका कोड बेस। सो जिसने भी जूम का क्लोन बनाया होगा मर्न स्टैक में, उसको ये कोड बेस बहुत ज़्यादा फेमिलियर बनेगा। मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया हुआ था, सो दिस वॉज वेरी इजी फॉर मी। बट इवन तो आई डोंट हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन हियर, बट मुझे समझ में आ गया था कि करना क्या है, कैसे करना। एंड हरकिरत सर ने एक वीडियो भी बनाई है इस पे, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। ओके, डू नॉट रिक्वायर ये ओके। तो अब तुम्हें ना एग्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन करने हैं, ठीक है। पिक रिलेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्लैश इजी प्रोजेक्ट्स। आई शो यू एन एग्जांपल ऑफ एन इजी प्रोजेक्ट जो मेरे को पिछले साल दिखा था। CC रिसोर्स आर्काइव। ओके, क्रिएटिव कॉमन्स, ये दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। इस बार ये लोग जीसॉक नहीं कर रहे हैं, सैड, नहीं तो मैं कर लेता। बट बहुत आसान प्रोजेक्ट है ये, देखो इसका नाम है मॉडर्नाइज CC रिसोर्स आर्काइव। आई शो यू, जिस जिस बंदे को HTML CSS JS आता है ना वो कर देगा। देखो, जावास्क्रिप्ट HTML CSS बट जेकाइल फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल चीज़ है, मतलब ऐसे स्टैटिक साइट जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो ये ट्राई करो ये देखने का। ओके, इम्प्रूविंग फाइल स्ट्रक्चर, ये सारे PRs हैं। लिस्टिंग पेज UI चेंजेस, एक PR देखो, ये ऑलमोस्ट सभी को समझ आ जाएगा। ओके, पैडिंग डाला है, अच्छा ठीक है। एक HTML पेज बना दिया लेआउट में जाके, ओके ठीक है। तो जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा ना, एक बस यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखना होता है, 1 घंटा निकालो, ट्यूटोरियल देखो, कंट्रीब्यूट करने लग जाओगे। तो ये एकदम आसान प्रोजेक्ट होते हैं। बट फिर भी ये जीसॉक में आ जाता है तो तुम्हें जीसॉक का टैग लग जाएगा। बहुत आसान प्रोजेक्ट होता है, इनमें इतना लर्निंग नहीं होता। बट लाइक इफ यू वांट टू गेट इनटू जीसॉक, तुम्हें जाना ही जाना है, तो कर सकते हो ये वाले प्रोजेक्ट्स। तो अभी इसमें देखो इश्यूज क्या है, एक्टिव है या नहीं है, क्वीन कोड्स कौन है। ओके, तुम ये मेरे हिसाब से वो है, एक मेंटेनर है यहाँ की, जब एक बार कंट्रीब्यूट करने का ट्राई किया था, शी वाज देयर। तो ओके, दीज आर द प्रायोरिटी लो वगैरह। तो यूजुअली अगर तुम पहले कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, यू विल ट्राई टू फाइंड गुड फर्स्ट इशूज। देखो, देर आर नो गुड फर्स्ट इशूज ओपन, बट catch यूजुअली the सारे eye, it's इशूज the back इजी end हैं। that इट ऑल keeps डिपेंड्स everything running smoothly while ऑन योर लेवल ऑफ स्किल। तो प्रायोरिटी लो, What प्रायोरिटी if I लो, told you that every प्रायोरिटी हाई। time that ओके, Netflix, Spotify, or द Amazon CC go down, वोकैबुलरी इज नॉट it बीइंग costs यूज्ड। them $1 अब million जीपीटी यूज करो ना, हर every चीज का minute? But खुद से what's दिमाग stopping मत that लगाओ। from happening? पहले खुद A से समझने का quality ट्राई करो। backend. नहीं समझ रहा, जीपीटी करो, गूगल करो, इतने सारे LLMs हैं, कहीं कहीं से मदद ले लो। मतलब अभी तो जीसॉक में जाना बहुत आसान है। लाइक अभी तो बेसिकली मेरे पास जीपीटी का प्रीमियम है, तो काफी ज्यादा काम कर देता है वो। क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल द CC vocabulary is not being used. Fairly looking at the merged new PR where they were using the CDN vocabulary. चलो ठीक है, कुछ तो है vocabulary related है। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, रूममेट्स आए हुए थे। ऑलराइट, तो एड्स द एक्सप्लोर CC मेन्यू ग्लोबल हेडर। मैं बस तुम्हारे सामने PRs रिव्यू कर रहा हूँ कि तुम भी ऐसे देख सको। तुम्हें बहुत ज़्यादा देखना है चीज़ें, जितना तुम्हें कंटेक्स्ट होगा ना उतना तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ओके, तुम्हें समझ में आ रहा है, इशू समझ में आ गया, एक PR मार दो। देखो अभी इसमें पॉसिबिलिटीज करके मेंटर है, और कोई PR मार भी नहीं रहा, तो देखो कितना खाली रेपोजिटरी पड़ा है। तो ऐसे पुल रिक्वेस्ट मारा करो। फिर जितसी है, ये जॉब लेना। तो दीज आर द थिंग्स, रिलेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, इजी प्रोजेक्ट्स।
फाइंड आउट प्रोजेक्ट्स वेयर कंट्रीब्यूटर्स गॉट सिलेक्टेड विदाउट कंट्रीब्यूशंस / वेरी लेस कंट्रीब्यूशंस। इसका मतलब समझो, यूजुअली लोग बोलते हैं कि तुम्हें पहले से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट बहुत ऐसे लकी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बिना कंट्रीब्यूशन के हो जाता है। सो आई लिंक दिस यूट्यूब वीडियो यहाँ पे। ओ भाई वापस ओके, सो दिस इज द वीडियो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ लिंक टू द प्रपोजल। मैंने थोड़ा प्रपोजल का फॉर्मेट इनसे ही कॉपी करा था, तो ये भी तो जितना तुम आइडिया लोगे ना कि कैसे चीज़ें काम करती है, इट विल बी ईजी। तो इन्होंने एक्सपीरियंस डाला है। ओके, सो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस गाय, काफ़ी सारे इंटर्न्स कर रखे हैं। अवेलेबिलिटी और आई एम सॉरी, फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स, स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट गोल्स। ओके ओके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी पुल रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन करा ही नहीं है बंदे, फिर भी इसका सिर्फ एक प्रपोजल डालने पे सिलेक्शन हो गया। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सिलेक्शन दैट इज एवर पॉसिबल। इसको बोलते हैं कंप्लीटली लक बेस्ड जीसॉक। तो इस पे भी जा सकते हो। तो बेसिकली मैंने ये कॉपी करा है, मैं दिखाऊंगा मेरे प्रपोजल पे, एंड होपफुली अगेन आ गया ना। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो तुम्हें ध्यान रखने हैं अगर तुम अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो। बहुत आसान है जीसॉक क्रैक करना, मतलब रिलेटिवली यार। तो दीज आर द प्लान, अगर तुम ये 3 चीज़ें फॉलो करोगे और सही से करते हो तो हो जाएंगे। एंड वही बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, बहुत सारे फ्रेशर्स लिंक्डइन में मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग कॉलेज में मिलते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझे जीसॉक क्रैक करना है, बता दो कैसे करा। मैं बताता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ उन्हें बताने में, एंड वो कुछ करते नहीं है। फिर आई हैव टोल्ड टू माई काउंटलेस फ्रेंड्स कि ऐसे करो, ये करो, वो करो। कुछ तो मेरे बाजू में बैठते हैं, फिर भी वो एक्शन नहीं लेते। तो देखो, होगा उसी का जो एक्शन लेगा। सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करोगे उस चीज़ से नहीं होने वाला। फिर ये एक वीडियो है, दिस गाय क्रैक जीसॉक इन 10 days, तो इसका एक्सपीरियंस भी सुन सकते हो। वॉट ही टोल्ड इज नो गुड फर्स्ट इशूज। सारे कंट्रीब्यूटर आसान आसान इशू सॉल्व करते हैं, तो तब तुम्हें बड़े इशू लेना है। कोई एक बड़ा इशू सॉल्व करो, सिर्फ एक पीआर मारो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीआर मारो 700,000 लाइन की, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेंटेनर को कहाँ दिक्कत आ रही है। और अज्यूम करो कोई इशू है जिसमें तुम्हें करना है, जैसे मेरा जीसॉक इज नॉट ड्यू टू पुल रिक्वेस्ट। मेरे 8 पुल रिक्वेस्ट मर्ज थे, बट दोस आर वेरी सिंपल पुल रिक्वेस्ट। इट इज मेजोरिटी ड्यू टू माई प्रपोजल, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। बट तो तुमने बहुत अच्छा पुल रिक्वेस्ट मार लिया जहाँ पे मेंटेनर के 3-4 घंटे बच जा रहे हैं, सो वो तुम्हें सेलेक्ट करेगा। ही विल रिमेंबर, अच्छा वो ये बंदे ने करा है। तो दीज आर द केसेस। ये स्लाइड तुम लोग ध्यान रख लो, इसकी अगर तुमने फॉलो करा तो जीसॉक में जाना इज वेरी वेरी पॉसिबल अभी। हाउ टू राइट द प्रपोजल, तो मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक फॉर्मेट होता है। इफ दे डोंट, मेक श्योर इट कंटेन्स दीज। ये दीज का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैंने क्या लिंक करा है। ये है जीसॉक का, तो बेसिक्स होना चाहिए ये सब। एलिमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी प्रपोजल, नाम, टाइटल, सिनॉप्सिस मतलब वो समरी चाहिए, बेनिफिट्स, डिलीवरेबल्स, रिलेटेड वर्क, और ये रूल्स है कि पीडीएफ जनरेट करना पड़ेगा। तो ये सारी बात है। एंड दिस ईयर जीसॉक इज अ वीक लेट। पिछले साल 21 फेब को ऑर्गेनाइजेशन रिलीज हो गई थी, इस बार 28 फेब को होने वाली है। सो यू गाइज हैव 1 वीक, अभी से लग जाओ, मेहनत करो, जेन्युइनली हो जाएगा तुम्हारा। और मैंने दूसरे प्रपोजल्स का लिंक डाल दिया है। एच डी एस लैब्स इज IIT रुड़की में जिनका भी जीसॉक हुआ है, सभी का प्रपोजल्स यहाँ पे। एंड दिस इज मेरा एक दोस्त है, उसने एक रेपो बनाया था, तो उसमें 30 अराउंड प्रपोजल्स है। तो आई विल शो यू माई प्रपोजल फर्स्ट। माई प्रपोजल इज वेरी डिटेल्ड। तो ओके, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, ओके सब लिंक्स कर दिया मैंने। दिस इज अबाउट मी। एंड अभी तुम्हें क्या करना है ना, अपने सारे स्ट्रेंथ्स को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करना। आई वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बैक देन, एंड द कॉम्पिटिशन आई हैड वॉज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो अभी मैं उससे ज़्यादा कैसे दिखूंगा। सो आई हैड पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ हैकेथॉन्स। मैं ट्विटर लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव था, सो दैट प्लेड अ बिग पार्ट फॉर मी। एंड मैं मेंटर के साथ बाई वीकली मीट्स पे जाता था। सो ये देखो मैंने लिखा है, ओके दिस इज माई फेमस ट्वीट्स जो थोड़े वायरल हो गए थे, 5,000-6,000 इंप्रेशन आ गए थे वो टाइम पे। ओके दिस इज हैक्टोवर फेस्ट, देन दीज आर द लैंग्वेजेस आई नो। अभी इसमें पूरा मत फेंको, मैंने तब थोड़ा बहुत फेंका था, अब तो मुझे ये सारी आती है। बट तब मुझे टाइपस्क्रिप्ट इतना अच्छे से नहीं आती थी, मुझे जेस्ट नहीं आता था, मुझे साइकिट, मुझे टेंसर फ्लो नहीं आता था तब इतना,
और मुझे AWS का कुछ अता पता नहीं था। अब सारी चीज़ें आती हैं, बट तब मैंने लिख दिया था कि हाँ ठीक है, कोहोर्ट में थोड़ा बहुत तो आइडिया है, लग जाएगा, कर लेंगे। सो फिर मैंने लिखा कि प्रीवियस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड अराउंड कोलैबोरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिख दिया कि मैं कोलैबोरेशन के अराउंड प्रोजेक्ट बनाए, कि 2-3 लोगों ने मिलके बनाए। तो इससे एक इंप्रेशन पड़ती है कि ये बंदा अकेला नहीं कर रहा, और इसमें कोलैबोरेशन, इसमें टीम स्पिरिट है, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर ओपन सोर्स और फोक्स। तो ये हैकाथन का प्रोजेक्ट है, उसके डिटेल डाल दिए, इसका डाल दिया, फिर ये डाल दिया, और इसमें मैंने ये देखो क्या क्या डाला है, लर्न सॉलिडिटी एंड हाउ टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन 6 आवर्स। तो इससे ये पता चलता है कि मैं फास्ट लर्नर हूँ। जितना अपने बारे में हाईलाइट कर सकते हो, हर सेंटेंस से कोशिश करो कि कुछ ना कुछ सही आउटकम निकले। दीज आर पर्सनल प्रोजेक्ट्स। पर्सनल प्रोजेक्ट्स इतने तब भी नहीं थे, अब भी नहीं है, अब बनाएंगे थोड़े बैठ के। एंड फिर ये देखो, मैंने थोड़ा बहुत पर्सनलाइज कर दिया कि ओके, मैं गिटार बजाता था पहले, मुझे रिकलेक्ट हुआ, तो आई वाज लाइक ओके, वाई म्यूजिक ब्लॉक्स में म्यूजिक है और कोड है। मैं पहले म्यूजिक बजाता था, मैं कोड अभी करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत लिंक निकालने का ट्राई किया, थोड़ा बहुत पर्सनलाइज करने का ट्राई किया कि ओके, दिस इज द प्रोजेक्ट आई पर्सनली फील अ कनेक्शन टू। तो मैंने ये सब लिखा, फिर मैंने उनका सॉफ्टवेयर यूज़ किया। जिस भी सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, उसे यूज़ करके बताओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू क्रोमियम, तो गूगल क्रोम तो सब यूज़ करते हैं, तो उसमें तो तुम्हें पता है, उन्हें भी पता है कि हाँ, तुम्हें आता है। बट अभी इनका सॉफ्टवेयर तुम्हें यूज़ करना आता है नहीं आता, तो वो दिखा दो उनको। तो मैंने ये दिखाया उनको, ऐसा मैंने कहा गया। ओके, विल गेट देयर। फिर मैंने बताया कि ओके, व्हाई डू आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट। हाँ भैया। ओके, फिर मैंने अपने इश्यूज दिखा दिए कि आई ओपन ऑल दिस इश्यूज, दीज आर माई पुल रिक्वेस्ट मर्ज। तो जो मेजर पुल रिक्वेस्ट थे, जो बड़े बड़े थे, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, कि जो मैंने ऐसे फीचर ऐड करे थे, वो फीचर तो नहीं हुआ, बट देन टू जो मुझे उस टाइम पे लगते थे कि हाँ ठीक ठाक है, उनको मैंने डाल दिया। अदर पुल रिक्वेस्ट का एक ऐसा एक कंबाइंड लिंक बना दिया करो। जैसे देखो, मेरे 8 पुल रिक्वेस्ट मर्ज थे, तो ऐसे मैंने पूरा लिंक बना दिया। तुम्हें बस ऑथर में जाके अपना नाम डालना। अरे ऐसे, एंड ये, तो तुम्हें दिख जाए। तो एंड दीज आर द अदर पुल रिक्वेस्ट, ये PR था, ये भी डॉक्यूमेंटेशन का ही था। तो मेरा इतना पुल रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ हुआ नहीं था, टू बी फ्रैंक। फिर दीज आर द डिस्कशन। तो मैं बता रहा था कि मैं कम्युनिटी में एक्टिव हूँ। तो ये देखो, मैंने उनका जो एलिमेंट है, जैसे बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं, सम पीपल यूज़ स्लैक, सम पीपल यूज़ एलिमेंट, सबका अलग अलग होता है। तो मैंने बात करा यहाँ पे, तो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि हाँ, मुझे भूलो मत, मैं एग्जिस्ट करता हूँ तुम्हारे कम्युनिटी में। फिर आई हैव हेल्प अदर डेवलपर सेट अप द प्रोजेक्ट एंड मेक कंट्रीब्यूशन टू गिटहब, कि हाँ मैं हेल्पफुल हूँ, मैं लॉन्ग टर्म एसेट बन सकता हूँ प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं अच्छे से बता देना है। फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में शुरू कर दिया कहानी। फिर मैं मेंटर के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। इन माय पर्टिकुलर स्टोरी, मैं फेब्रुवरी से मेंटर को ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2-3 बार पिंग करता था, उन्हें बोलता था कि मैंने ये रिसर्च करा, ये रिसर्च करा है। तो आई शो यू दिस डायग्राम, डायग्राम्स इंक्लूड कर सकते हो तो बढ़िया हो जाएगा। ये तो बेसिकली वर्क का डायग्राम है, बट तुम्हें आर्किटेक्चर डायग्राम इंक्लूड करना है कि अच्छा ठीक है, बैक एंड से फ्रंट एंड ऐसे कनेक्ट होगा, इसका ये हो जाएगा, और बहुत बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस है। छोटा है सेकंड। ओके, ओके, हो गया। तो मैंने ये बनाया था फिर, 2021 में ये हुआ था GSOC में। तो मैंने बेसिकली, ये प्रोजेक्ट बहुत ही अंडरलुक था। इन शुगर लैब्स देयर वर 115 प्रपोजल्स, एंड इन माय प्रोजेक्ट देयर वर 3 प्रपोजल्स। तो तुम समझ सकते हो, मेरे लिए कंपटीशन था ही नहीं ऑलमोस्ट मेरे प्रोजेक्ट में। Even though there were other better contributors, but the amount of research I had done and the amount of project I chose gave me an edge to get selected into GSOC. तो ओके, 2021 में पैलेट ये सब हुआ था, 22 में ये सब हुआ था। अब मैंने देखा कि उसमें से बाकी क्या क्या है। तो इसे बोलते हैं पुल इफेक्ट क्रिएट करना। अगर तुम मेंटर को पूछोगे ना, मुझे बता दो सेटअप कैसे करना है, हाउ डू आई नीड टू डू दिस, तुम उन्हें गूगल लेबल क्वेश्चंस पूछोगे ना, तुम उन्हें वो पूछोगे जो GPT बता सकता है, तो वो आइडियाज वर्क, तो उन्हें वो टाइम वर्थ इट नहीं लगेगा। मुझे काफी लोग लिंक्डइन में मैसेज करते हैं कि हाउ टू डू GSOC, ये क्या मैसेज हुआ, हाउ टू डू GSOC पे 50 वीडियो बनी हुई है, देख ले यार, है ना। इफ यू वो कुछ स्पेसिफिक पूछ रहा है कि भैया यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ आ रही है, देन आई कैन मे बी हेल्प। सेम विद द मेंटेनर, तो तुम्हें खुद से एफर्ट डालना है। 23 में ये हुआ था, एंड दिस वॉज अ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट विच आई स्टार्टेड टू कंप्लीट।
फिर आई शोड कि दिस इज व्हाट आई गोना डू। तो ये मेरा बात हो गया है कि मैं पहले से करूंगा। तो मेरे मेंटर ने मेरे को ऑलरेडी प्री सिलेक्ट कर दिया। तो ऐसा तुम बना सकते हो हर चीज़। तो आई एम जस्ट वॉकिंग यू थ्रू माई प्रपोजल, क्योंकि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है ये चीज़। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर बना के दिखाया था इनको कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। फिर मैंने इनका ही कोड इनको समझाया। ये तुम्हें कब करना है पता है क्या? ये तुम्हें हर हर वक्त नहीं करना। ये तुम्हें तब करना है जब तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो। मेरा इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि दिस वॉज अ वेरी इनएक्टिव रेपो। द मेंटर वॉज एक्टिव 10 महीने पहले। तो आई एक्सप्लेन देयर कोड टू देम कि हाँ मुझे तुम्हारा कोड समझता है। मैं जब सिलेक्ट होऊंगा तो मैं आराम से कर दूंगा। तो मैंने बहुत सारे जस्ट लिंक कर दिए। यू ऑल्सो हैव टू कीप योर प्रपोजल एज शॉर्ट एज यू कैन। मैं इससे ज़्यादा शॉर्ट कर नहीं पाया, नहीं तो फिर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती। तो मैंने ये हर एक बेसिकली मैंने बताता हूँ क्या करा था। हर एक मैंने उनका फाइल पढ़ा। मैंने देखा कि कैसे कोड लिखा हुआ है। फिर मैंने जो नहीं समझा जीपीटी में डाला, उसको बोला कि तू मुझे लिस्ट बना के दे। फिर वो लिस्ट को मैंने मॉडिफाई करा और ऐसे जस्ट बना के डाल दिए प्रपोजल में कि ओके आई अंडरस्टैंड योर कोड। एंड दिस क्वाइट फ्रैंकली हेल्प मी अलॉट इन माई जीसॉक पीरियड। फिर मैंने इनको बस यही है, आई एम एक्सप्लेनिंग देयर कोड टू देम। फिर बीच बीच में अपना ओपिनियन भी दे दिया करो। आई विल शो यू कहाँ दिया है मैंने अपना ओपिनियन। ओके। तो यहाँ पे सो म्यूजिक ब्लॉक्स ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे 2-3 ब्रेक ऐसे मिलते हैं एक दूसरे को। स्क्रैच अगर देखा हो तुमने उसके जैसा है। तो आई टोल्ड कि ब्रूट फोर्स के बदले क्वाट्री एल्गोरिदम यूज़ कर दो। मुझे डीएसए नहीं आती थी तब तक। तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया गूगल करके कि क्वाट्री यूज़ करो। मेंटर को सजेशन पसंद आ गया एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड द क्वाट्री एल्गोरिदम। तो यही बात है, थोड़ा बहुत खुद का सजेशन दिया करो। एंड देन दीज आर द डिलीवरेबल्स। तो डिलीवरेबल्स में तुम्हें क्या करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ तुम्हें बताना है कि तुम प्रोजेक्ट करोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट इज अबाउट तुम्हें लैंडिंग पेज ठीक करना है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, लैंडिंग पेज रीस्टाइल करना है। तुमने लैंडिंग पेज में कंट्रीब्यूशन करे होगा, तो तुम यहाँ पे क्या डालोगे? फिग्मा का लेआउट डालोगे, कैसा दिखता है प्रोजेक्ट वो डालोगे। तो क्रिएशन ऑफ अ डिजाइन डॉक्यूमेंट, तो मैंने ये सब बता दिया कि मैं ये करूँगा। द प्रोजेक्ट एंटायर प्रोग्रेस कैन बी फाउंड हियर, तो मैं पिछले साल का भी मैंने ये देख लिया था। फिर ये ओके, यू कैन सी द रीजन वाई इन दिस जस्ट। तो मैंने हर चीज़ का रीज़न भी बता दिया है कि ये दिक्कत आएगी तो मैं ये ऐसे फिक्स करूँगा। तो उसको लगेगा अरे यार इसको तो सब आता है, इसने तो सब कर रखा है। बट आई रियलाइज कि काफ़ी कुछ नहीं आता। और द होल कोड बेस वॉज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई वॉज अ फंक्शनल प्रोग्रामर बैक देन। तो ये है। फिर मैं उन्हें कोड दिखा रहा हूँ कि ऐसे कोड करूँगा मैं जी सॉक में। फिर ये देखो, द बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोलेशन यूजिंग ब्रेक ब्रेक फैक्ट्री इज हियर। तो फिर दिस इज द कोड। तो बेसिकली मैंने इनको दिखा दिया कि मैं ऐसे कोड करूँगा। तो यहाँ पे तुम्हारी कोड क्वालिटी पता चल जाती है ना। तुमने आधा प्रोजेक्ट अपने प्रपोजल में इम्प्लीमेंट कर दिया। सो नाउ यू हैव अ एज ओवर एवरीवन एल्स। फिर ये देखो, एज केसेस अबाउट कोलिशन डिटेक्शन इन दिस जिस्ट, तो मैंने उसके भी रीजन लिख दिया कि ये हो सकता है। तो अ लॉट ऑफ एफर्ट वाज पुट इनटू दिस। फिर ये इन्हें ऐड करना था और दिस इज अ एसवीजी, तो इन्हें टेक्स्ट ऐड करना था। तो हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूट तरीके से तुम्हें एफर्ट डालना है और कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाए, कि मेंटर को लगे कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। तो हर चीज़ डालो, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। फिर इम्पैक्ट में बस एक घिसा पिटा डायलॉग होता है कि लिख देना मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, हाउ विल दिस प्रोजेक्ट सर्व। वो तुम्हें जीपीटी बना के दे देगा बेसिक सा। और ये टाइमलाइन है, ये मैंने कॉपी करा था उस प्रपोजल से। सो दिस इज हाउ आई शोड देम कि तो दिस इज माई प्रपोजल बेसिकली। और जी सॉक में मिनिमम लिखना होता है 35 आवर्स, तो मैंने 35 to 50 लिख दिया। एंड अपना टाइमिंग्स पे मेंशन कर दिया करो, बेटर होता है। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो मैंने देखा था कि ये लोग का एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उस पर ब्लॉग्स लिखते हैं। तो आई रोट कि आई विल राइट ब्लॉग एवरी 2-3 वीक्स ऑन दिस। ड्यूरिंग माई जीसॉक पीरियड द ऑर्गेनाइजेशन मेड अ रूल कि हर हफ्ते एक ब्लॉग जाना चाहिए। उसके पहले नहीं था। तो आई रोट दिस ये। तो दिस शोज कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन एंड आउट पता है। तो आई शुड बी द बेस्ट कैंडिडेट, तुम्हें ये प्रूव करना है। इवन इफ यू आर नॉट द बेस्ट कैंडिडेट, तुम्हें ये प्रूव करना है एटलीस्ट। हो जाएगा फिर तुम बन जाओगे ना यार बेस्ट, सीख सीख के। फिर ये पोस्ट जीसॉक प्लान, तो तुम्हें बताना है, पहले ट्रूली बता देना कि तुम रहोगे प्रोजेक्ट के साथ या नहीं रहोगे। बट मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड हैव नथिंग बेटर टू डू, तो ओपन सोर्स से बेटर कोई चीज़ नहीं है ऐसे ओवरऑल, मतलब या तो स्टार्टअप कर लो। बट तो यही है। तो मैंने बताया कि आई विल डू दिस। फिर मैं ये देखूंगा हाउ टू सेव न्यूअर म्यूजिक ब्लॉग्स, दिस इज अ वेरी नीच थिंग। तो वो सोचेंगे वो इसने ये भी सोच लिया था। तो ये बात है। और मैंने ये लिख दिया था कि आई एम 100% डेडिकेटेड टू शुगर लैब्स। अगर तुम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रपोजल डाल रहे हो
तो ये लिखना, नहीं तो मत लिखना, दे विल फिगर इट आउट कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये दूसरा प्रपोजल है। अरे यार, start presenting. So these are the do's and don'ts. Do's पहले बात कर लेते हैं। Be highly skilled, focus heavily on your learning. तुम्हें सारी रिसर्च खुद से करनी है। इट्स लाइक मेंटेनर्स लोग क्या होते हैं, वो लोग किसी कंपनी में बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे होते हैं। वो अपने साइड टाइम में घर पे आके 2-3 घंटा दे गिव टू द प्रोजेक्ट, दे ट्राई एंड लुक टू कंट्रीब्यूट, एंड वो कंट्रीब्यूटर से बात करते हैं, पुल रिक्वेस्ट मर्ज करते हैं। अब तुमने बहुत ही फालतू पीआर बनाई हुई है, जैसे ये देखो, क्रिएट पीआर वेनी विदाउट हैविंग एनी आइडिया ऑफ व्हाट द कोड इज डूइंग। कंप्लीटली एलएम से कोड छाप लिया, पीआर बना दी। बहुत लोग करते हैं ये, मैंने देखा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं मेंटर बन रहा हूँ, मतलब लाइक मैं मेंबर हूँ, उसमें मैंने देखा है। फिर नॉट रीडिंग द कम्युनिटी गाइडलाइंस, दिस इज। तो ये देखो, फिक्स सिंपल टाइपोज और डॉक्स। अज्यूम करो वो बंदा, ही हैज 2 hours, in 2 hours he has to review all the pull requests. Now you have created 3 pull requests जहाँ पे तुम वर्ड्स फिक्स कर रहे हो। लाइक ब्रो, यू आर अ डेवलपर, थोड़े बेटर कॉन्ट्रीब्यूशंस कर लो एटलीस्ट यार। जहाँ पे ज़रूरत है, अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो कर दो। वो एक बार के लिए फीजेबल लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो यूज़र लोग को बेटर लगेगा। टाइपोस फिक्स करना अनटिल अनलेस बहुत ही नेसेसरी हो, मत करा करो। डू योर ओन रिसर्च, डू नॉट आस्क फॉर हैंडआउट्स। नोबडी इज गोना गिव यू द मैप। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, दिन में 8-10 घंटा बैठना पड़ेगा, तब जाके कुछ पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस, मेंटर्स स्लैश पास मेंटीज। मेंटर को ये नहीं बोलना है हेलो आई नो जावास्क्रिप्ट हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, नहीं। खुद की रिसर्च करो, खुद देखो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे है, क्या ये है। पास मेंटीज को भी, मतलब जैसे मैंने जी सॉक करा है, बहुत सारे लोगों ने करा है, उन्हें भी कुछ भी क्वेश्चन मत पूछा करो, जैसे हाउ टू डू जी सॉक, व्हाट इज ओपन सोर्स। गूगल करो, खुद से एफर्ट डालो। जब सामने वाले बंदे को लगेगा कि तुमने एफर्ट डाला है, तब वो तुम पे एफर्ट डालने को तैयार होगा, नहीं तो वो भी फ्री नहीं बैठा है ऑल टाइम। और बी हेल्पफुल एंड आस्क क्वेश्चंस। फिर ये डोंट्स है, डोंट क्रिएट फालतू के पीआर। डू नॉट, फिर ऐसा है ना, बहुत लोग कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं पढ़ते। जैसे द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू, उसमें एक गाइडलाइन है कि डू नॉट ओपन पुल रिक्वेस्ट विदाउट द इशूज असाइनमेंट टू यू। तो लोग बिना असाइन हुए ही पीआर खोल देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। वो बंद हो जाता है और उनका रेपुटेशन बुरा हो जाता है। पिंग मेंटेनेंस फॉर अनवांटेड रीजंस। अभी तुमने टाइपो का पीआर खोला है, लाइक रीड में एरर फिक्स करने का पीआर खोला है, क्यों करना है मेंटेनर को टैग? लाइक वो देख लेगा, इट इज़ नॉट अ हाई प्रायोरिटी थिंग ना। तो unnecessary private conversation with mentors. This is something I did a mistake in my GSOC period. I used to talk with only my mentor, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, मैं कम्युनिटी में नहीं डालता था। तो मैं ऑलमोस्ट, फिर दे ऑलमोस्ट टोल्ड मी कि ऐसे नहीं चलेगा, एंड दे ऑलमोस्ट थ्रेटन्ड मी समवट। तो वही बात है, कम्युनिटी में एक्टिव रहो। ओपन सोर्स का नाम इज ओपन सोर्स फॉर अ थिंग, ओपन होना चाहिए हर चीज़, कुछ भी छुप छुप के मत करो। एंड दिस इज अ नोट फ्रॉम अ मेंटेनर। सर्किट वर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखो, they do not care about introductions like I am from college XYZ, I know HTML CSS, could you suggest a beginner issue? खुद का काम करो। देखो, it is boring and difficult to take action upon. We do not care which college you are from, we do not care the technology you already know. उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम IIT से हो या Tier 3 से हो या कोई ऐसी बेनामी कॉलेज से हो। ऑल्सो ये देखो, आउटसाइड GSOC वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू हैव वन टू वन मेंटरशिप, as none of us work on full time on this project. Either they have a full time job or full time college. So try to set the environment of yourself. Ask help in public channels. So this is a thing from your mentor as well, जो मैंने ऐड कर दिया। Ad hoc. Check every project of every organization. तो ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये करा करो, बहुत फायदा हो जाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, मेजोरिटी लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पाइथन आती है, आई एज्यूम बेसिक लोग वही, मतलब मैंने भी वही करा था शुरू में। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका पर्ल लैंग्वेज किसी ने सुना हो तो, और एलिक्सर किसने सुना हो तो इसमें कोड बेस होगा, एंड दे वांट टू माइग्रेट फ्रंट एंड फ्रॉम रिएक्ट जेएस टू रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट। कितना आसान प्रोजेक्ट है, जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट में जाना है। तो ऐसे प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम हर एक प्रोजेक्ट देखोगे तो। टाइम लगेगा, 1000 प्रोजेक्ट होते हैं, देर आर 1000 प्रोजेक्ट्स, बट टाइम दिया करो। एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस और कंट्रीब्यूटर्स विल से
मतलब जो है तुमने कंट्रीब्यूट करा है ना वो तुम्हारे पास रहेगा। जो मेरा ओपन सोर्स प्रोफाइल है अभी तो अच्छा हो गया, तो वो मेरे पास ही रहेगा इवन इफ आई गेट इनटू जीसॉक और आई डोंट गेट इनटू जीसॉक। इट इज़ वेरी बेटर देन सबमिटिंग असाइनमेंट्स जहाँ पे तुम्हें रिप्लाई भी नहीं आएगा। अ लॉट ऑफ इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे ना, असाइनमेंट डालने पे रिप्लाई तक नहीं देते वो लोग, सही असाइनमेंट होगा फिर भी। तो उससे बेटर चीज़ है ओपन सोर्स कर लो। तो ये बात है। तो होपफुली आई एम क्लियर विद माई पॉइंट्स। एनी क्वेश्चंस फोक्स? Guys, anyone have any questions regarding GSOCs? So hopefully they did or they did not because there are no replies. So all right, that is all I had from my side. Thank you to Sir Jain and the Uh, Cyborg team. Hello, am I audible? Yeah, you are. I wanted to ask this question ki I have like tried to contribute to open source before as well, like Okay. last year also. But Mm-hmm. and I was like pretty motivated in the beginning, and I did actually searched for like a few repositories and a few projects. But Mm-hmm. eventually, like first of all, it was like there were some projects I was able to set up locally, and eventually what used to happen is कि there used to be some errors. पहले तो एक तो सेटअप में भी हो जाता था कभी कभी, एंड इवेंचुअली वो बहुत ज्यादा ही like it used to be very what you call it hard Okay, to very digest their code bases, so it was makes sense. very difficult to figure out कि how to actually get to the actual issue. All right. तो So तुम and लोगों के में cohort है? Do you have the Hercules cohort? yes, I do. Okay, so like you just have to make use of it. So I'll show you one thing. Dot 100x. And also, since it was tough for you to set up which organizations were you contributing to, by the way? I think I tried async API, and Okay. that I think that healthcare system was also one of Okay. those. Okay, makes sense. Okay. So async API. Okay, so I'll show you. So for the folks who have the cohort, um, I don't know ये क्या bug है. We should fix it भाई. कोई बात नहीं. Add of classes. इसमें जाएंगे तो GSOC. So these are the contributions. तुम्हें ये देखोगे तो तुम्हें idea पड़ जाएगा. No, Now I've actually watched psi.js. हाँ. all these I've already watched all these lectures, Okay. and yeah, I mean the problem is that it becomes quite hard to digest or navigate through the projects. That's my problem. Like I see an issue, and I'm like it becomes very difficult for me to actually find out exactly where do I need to go, and in the whole code base. That's the problem. Makes sense. So the thing is na, in the CLI based projects, like Async API has a CLI and it has a website. So during these kind of projects, the website one is usually easier to navigate. क्योंकि वेबसाइट में तुम्हें पता है कहाँ पे है, तो यू कैन बेसिकली फाइंड दैट आउट. बट CLI बेस में थोड़ा बहुत तो तुम्हें करना पड़ेगा. एंड द थिंग इज ना, इट इज़ हार्ड. दैट इज़ वाई इट इज़ वर्थ इट. क्योंकि अगर हार्ड नहीं होता, सब लोग कर लेते, तो वर्थ इट नहीं होता ना. तो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड. यू विल हैव टू फिगर आउट अ वे. एंड यूजुअली मेंटेनेंस विल नॉट बी अवेलेबल. इसलिए यू हैव टू ट्राई एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट्स जहाँ पे मेंटेनेंस अवेलेबल हो. जैसे आई टॉक्ड अबाउट मेशरी, राइट? So Meshery is a very hard code base. It is around 10 GBs and backend is in Golang. It manages a lot of things like Kubernetes, Prometheus, Grafana, Nginx, a lot of things I haven't even heard of. पर उसमें the maintainers are so active, they will guide you with everything. They will give you a meshmate कि हाँ इसे पकड़ो, इसके साथ contribute करो. So do this. तो यही है कि contribute to better organizations. And second thing is it is going to be hard. It was hard for me as well. It was hard for me during GSOC as well. Because वहाँ पे the whole code base was an object oriented programming. मुझे नहीं आती थी. And it was hard for me to navigate क्योंकि मैं React को अलग तरीके से सोचता था. They were using Shadow DOM or something. तो ये बात है. So it is going to be hard and that is why only it is worth it. Okay, thanks. Yeah. Any other questions?
Okay. So I have stopped sharing. If anyone has any questions, so we can do that. Or हेलो, आई एम ऑडिबल? yeah, you are audible. करण भैया, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। देन मैं जीसॉक के बारे में देख ही रहा था, तो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था आपका लिंक, मेरे दोस्त ने, कि अच्छा इसको। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को भैया अभी जैसे अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे हूँ और मेरे को इतना पता नहीं क्या होता है जीसॉक, कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं, बस गिटहब आता है। हम्म। तो मेरे को पार्टिसिपेट करना भी चाहिए या फिर नहीं, मतलब पहले यार अभी देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा एक दोस्त है, अभी तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो होपफुली उसका नहीं होगा, बट तो उसको भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही आती है। तो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे मैंने तुम्हें 2 बता दिए, देखो मैं तुम्हें एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करके तुम्हें 2 अभी बता देता हूँ। हाँ, शेयर एंटायर स्क्रीन, एशिया टेक्नोलॉजीज। ओके, होपफुली इट इज विजिबल अगेन, है ना? तो गिटहब, शुगर लैब, तो ये रेपॉजिटरी है जिसमें मेरे कंट्रीब्यूशन थे। दिस इज इन प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आती है और गिटहब आता है, यू कैन गेट स्टार्टेड। अपने लिए एम रखो कि मैं दिन का 1 पुल रिक्वेस्ट मर्ज करवाऊंगा इसमें, और मर्ज हो जाएगा। अगर तुम 10 दिन में 5 भी करते हो, देन ऑल्सो यू आर वेरी एट अ वेरी गुड पोजिशन। अगर तुम 5 PR मर्ज करवाते हो, यू आर एक्टिव इन द कम्युनिटी एंड प्रपोजल अच्छा है, तो चांसेस हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। और एक मैंने बताया था तुम्हें, क्या था वो, क्रिएटिव कॉमन्स, ये वाला। तो इसका एक आसान सा प्रोजेक्ट बताया था मैंने, ये रहा आर्काइव, जो भी था ये रहा। तो ये भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, ये वाला, तो ये भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट प्रोजेक्ट्स। और देखो ऐसा है, अभी 22 फरवरी है, एक हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट आएगा, तो एक हफ्ता ट्राई करो स्पीड रन करने का। दिन में 10-10 12-12 घंटा बैठो, जावास्क्रिप्ट के आगे रिएक्ट सीख लो, थोड़ा बहुत बैकएंड का 2 घंटे का वीडियो देख लो, कि एक आइडिया पड़ जाए, अच्छा ठीक है ऐसे कनेक्ट होता है, ये वो। एंड जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन आए, यू कैन जंप राइट इनटू इट और तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। भैया भैया, हम्म। क्योंकि मैं अभी जस्ट बैच ले रखा था चाहे कोड का कोड 1.0 करके, तो ओके। उसमें से किसी ने रिकमेंड किया था कि ये लेक्चर्स देख, किसी सीनियर ने रिकमेंड किया था मेरे को। हाँ, नहीं बढ़िया चीज़ है। तो अभी एक हफ्ता बैठो, मैं तो बोल रहा हूँ एक हफ्ता बैठो, ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च करो, दिन में 3-4 घंटा, 5-6 घंटा दो कोडिंग को, प्रॉपर कोडिंग करो, बाकी हर चीज़ छोड़ दो जो भी तुम कर रहे हो। अभी फिटनेस है, ये है, वो है, मतलब मैं भी करता हूँ यार काफ़ी चीज़ें। मैं दिन में बुक पढ़ता हूँ, मेरा काफ़ी रूटीन है ऐसा, मेरे को सेल्फ इंप्रूवमेंट करना पसंद मतलब है। और गिटार वगैरह हर चीज़ करता हूँ मैं, बट अभी के लिए हर चीज़ छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो, और वो जितना भी तुम कर सकते हो रिएक्ट कंप्लीट कर लो एटलीस्ट, कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बाहर आए ना, तो तुम कंट्रीब्यूट तो कर सको एटलीस्ट, तो बढ़िया हो जाएगा इस साल भी। ओके भैया, हाँ थैंक यू भैया। हाँ बिल्कुल। एनी मोर क्वेश्चंस? या श्योर। Hmm. No. Okay, that was not an offer from Sugar Labs. That I got selected in Sugar Labs. Yeah, yeah. Okay. Yeah. So Harkirat talks about this inflection point in tech. So so I'll share this. ये देखो inflection. अरे यार, hopefully मैं screen sharing off नहीं रहा है. Inflection point. हाँ, so this is like the inflection point. ये वाला. तो तुम्हें आई न्यू इतना सारा, एंड यहाँ पे व्हेन यू गेट इनटू GSOC, और मतलब कुछ तो ऐसा देयर वाज होता है कि जो मेंटर था मेरा, ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, उसने मुझे हर चीज़ बताई कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ऐसे काम होता है, और दिस इज़ अ स्क्रम इकोसिस्टम। उसने मुझे एटलासियन बताया, मतलब क्या था वो, हाँ जीरा टिकट्स ये होते हैं, यू हैव टू राइट यूजर स्टोरीज। उसने मुझे पूरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि पहले फंक्शनल डॉक्यूमेंट लिखते हैं, देन यू ड्रॉ द डायग्राम फॉर इट, देन यू राइट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसको LLD भी बोलते हैं, लो लेवल डिज़ाइन, कि तुमने हर फंक्शन हर क्लास कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, हर चीज़ लिख दी। उसके बाद जब तुम कोड कर रहे हो, तो तुम बस कोड कर रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग, लाइक ऑब्वियसली तब इश्यूज आएंगे, बट तो उसने काफ़ी ये अच्छा चीज़ कर दिया, तो थोड़ा बहुत मेरा सॉफ्टवेयर को देखने का आउटलुक बदल गया, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया। फिर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो दीज आर द थिंग्स आई लर्न इन GSOC यार। इट इज़ मोर अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द थिंग यू गेट विद द मेंटर, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आ जाता है ना थोड़ा सा, तो वही बात है। हम्म।
हाय, मेरा एक क्वेश्चन है. तो हाँ. आफ्टर GSOC, what's the plan if I want to make a career in open source and all? It completely depends on what you are optimizing for. जैसे on the longer term, I am optimizing for entrepreneurship. तो just solving basic issues in open source and getting a job won't be my way. तो मुझे तो प्रॉपर ऐसा हर चीज़ सीखनी है कि हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ एंड देन मुझे लॉन्च करना है. बट डिपेंडिंग ऑन यू कि जीसॉक हो जाएगा ना तो इट्स लाइक आई डोंट नो अक्रॉस द ग्लोब 1000-1200 लोगों का निकल रहा है. तो इट विल गिव यू एन एज. तुम्हारा रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और इट्स लाइक लिंक्डइन के कनेक्शंस भी आराम से एक्सेप्ट हो जाते हैं. मैंने ऐसे देखा है यूजुअली मेरे जो दोस्त अप्लाई बात करते हैं. मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट का क्या था वो इंटर्नशिप था. मैंने तो अप्लाई नहीं करा बट मुझे रेफरल मिल गया था. मेरा डीएस उतना स्ट्रांग नहीं है तो मैंने अप्लाई नहीं करा बट मुझे रेफरल मिल गया था. तो यू कैन हैव अ ग्रेट करियर इन ओपन सोर्स एज वेल. यू विल गेट रिकॉग्निशन फॉर योर जीसॉक वर्क इन एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू गो. अभी जैसे मैंने पहले जीसॉक करा हुआ है एंड अभी मैंने जैन में भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करा है. लाइक ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो कि मतलब अराउंड 5000 लाइन्स ऑफ कोड आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर कोड बेस. तो अच्छा खासा आया. आई एम द नंबर वन कंट्रीब्यूटर है. तो इट विल हेल्प यू अलॉट. और जिस भी नए ऑर्ग में जाओगे दे विल रिस्पेक्ट यू एंड तुम्हें अच्छे इश्यूज पे काम करने देंगे. तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला काम कर लो. तुम्हें अच्छा इश्यूज देंगे. तुम्हें ओनरशिप देंगे. एंड बस यही है. जीसॉक के बाद इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग विल चेंज बट हाँ यू विल गेट सम एक्सपीरियंस एंड लाइफ विल बी अ बिट ईजियर उसके बाद. होपफुली दैट आंसर्स योर क्वेश्चन यार. मैं थोड़ा बहक गया बात से बट No, no, okay, okay. And one more thing, we can do GSOC only one time, right? या 2 बार कर नहीं सकते दो बार कर सकते हो ट्वाइस. हैं? Yeah, you can do GSOC twice, and even working professionals can do GSOC abhi. So yeah, you can do GSOC twice. तुमने भी करा है क्या GSOC? या अरे ग्रेट यार. नहीं, अभी किया था GSOC. अभी हम CNFC में हम मेंटेनर बन गए हैं क्यूबस्टेलर में. कौन सा प्रोजेक्ट में? क्यूबस्टेलर CNFC ओ का ग्रेट सैंडबॉक्स. मैन ग्रेट. ओके. CNCF में करा था. मैं भी अभी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू मेशरी एंड सम अदर प्रोजेक्ट. तो ग्रेट यार. हाँ, देखा. अभी अभी मैं मेशरी बहुत टॉप पे चल रहा. हम्म. ग्रेट वर्क. और किसी को कुछ सवाल या कुछ है? So hopefully no one has any questions. Sahaj? Yeah, all right. So thank you everyone. That was all from my she might be mute. आवाज नहीं आ रही. Okay. Yeah. 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 Thank you for inviting me, bhai. Thank you, Karan. Yeah.
नॉट रिलेटेड टू कोडिंग, कोई आफ्टर इफेक्ट्स चाहिए किसी को कुछ भी तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। जुगाड़। Okay. Bye, everyone. Yeah. थैंक यू सो मच। जस्ट वेट, आई विल शेयर।